معراج کی رات آنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے نبی ستائے گئے سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی۔ انبیاء جتنے بھی آئے انہیں جتنی اذیتیں تکلیفیں پریشانیاں آئیں سب سے زیادہ میں مصطفیٰ کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی۔ آپ بتائیے یہ منظر تو ذرا سامنے رکھیے، 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان گزارا۔ ایک مرتبہ آپ نے کوہ صفا نامی پہاڑ کے قریب جمع کیا، کہا ضروری بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا محمد نے بھی کوئی بات کرنی؟ جی بات کرنی، جمع ہو گئی۔ سنیے آقا کریم نے فرمایا میرے بارے کیا کہتے ہو؟ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا اور کچھ نہیں کہتے، آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ صادق بھی امین بھی۔ اچھا آقا نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے جو جگہ باتی تم بھی دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لوگ نہیں یہاں کچھ بھی نہیں، لیکن اگر میں کہوں یہاں ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا، بتاؤ میری بات مانو گے؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے وہاں کچھ نہیں، لیکن کہا محمد آپ اتنے سچے ہیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنا مانتے تھے۔ آقا نے کہا لوگو سن لو پھر وحدہ لا شریک اس کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ سارے بت جھوٹے ہیں، کوئی خدا نہیں، خدا اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اس کو مانو، کلمہ پڑھ لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب، اور تمہاری بہتری کے لیے، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، نارے جہنم سے بچ جاؤ، تمہارے فائدے کے لیے۔ بس اتنا اعلان کرنے کی دیر تھی، وہ سارے کے سارے دشمن مخالف ہو گئے۔ کتنی اذیتیں تھیں، ایک لمبا موضوع ہے۔ آقا کریم کا جی چاہا کہ میں بیت اللہ کے پاس آ کے اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ آقا تشریف لائے، ان مشرکوں نے دیکھا کہ محمد آج اکیلے ہیں، ابو بکر ساتھ نہیں، موقع ہے شرارت کرتے ہیں۔ انہوں نے اونٹ وہاں ذبح ہوا پڑا تھا، اس کی علائشیں اوجری وغیرہ اٹھائی اور اٹھا کر آقا کے اوپر رکھ دی۔ کتنی تکلیف ہے، کتنی اذیت ہے، اندازہ لگائیے۔ جو کوئی مکہ میں آتا نیا کوئی مسافر یہ دوڑ کے اس کے پاس جاتے، وہ کہتے محمد کے پاس نہ جانا، جہاں جی چاہتا ہے چلے جاؤ، پورے مکہ میں ہر ایک سے ملو، محمد سے نہ ملنا، اگر تم مل گئے اس نے جادو کر دینا ہے، اس نے باتیں نہیں کر دینی، وہ لوگوں کو غلط فہمیاں ڈالتے، کیا کرتے، میں ظلم کی داستان کیا بتاؤں، حتیٰ کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے پہ بھی مجبور کر دیا، مکہ سے ہجرت کرنے پہ بھی مجبور کر دیا۔ آپ دیکھیے 39 لوگ کلمہ پڑھ گئے، لیکن ابھی تک وہ خانہ کعبہ نہیں آنے دیتے، چھپ چھپ کے مسلمان عبادت تبلیغ کرتے۔ جناب عمر مسلمان ہوئے نا، عرض کی آقا ہم حق پہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی آقا آئیے آج اعلان اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ 2 سطریں بن گئی، لائنیں، ایک کے آگے اللہ کا شیر امیر حمزہ ہے، دوسری لائن کے آگے عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر کی تلوار لہرا رہی، چونکہ غصے والے جوان آدمی کہتے تھے اور جس نے یتیم ہونا ہے آ جاؤ، بچوں کو کرنا ہے آ جاؤ، عمر کوئی روک کے تو دکھائے۔ چنانچہ
उन काफिरों ने देखा कि उमर भी कलमा पढ़ गया, तो अपने सर को पीटने लगे, हाय हमारी ताकत उधर चली गई, हमारा रोब उधर चला गया। बहरहाल कितना सख्त था, जनाब उमर को देख लीजिए, पता चला ना मेरी बहन और बहनोई ने कलमा पढ़ लिया, तो आपको सारा वाकया याद है। मैं जल्दी से, कितने गुस्से से आया, दरवाजा पिटा, कहा दरवाजा खोल दो। बहन ने कहा ठहर, तो नहीं नहीं दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के कहा बताओ मोहम्मद का कलमा पढ़ा है? बहन कताने लगी, हाँ पढ़ा। मारना शुरू कर दिया, औरत को, बहन को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि सर से खून निकलने लगा। जब खून निकला ना तो बहन भी गुस्से से बोली, उमर जिस बाप का खून तेरी रगों में है उसी बाप की मैं बेटी हूँ, जान तो चली जाएगी, मोहम्मद का कलमा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। जब आगे से जब ये सुना ना जवाब, तो दहल गया, अच्छा ये जवाब है। ठंडे हो गए। कहा जब मैं दरवाजे में खड़ा था अंदर कोई चीज पढ़ रहे थे, वो क्या था मुझे दिखाओ तो सही। कहा नहीं पहले गुस्ल कर, यानी गुस्ल करके वो कुरान की आयत लाई गई, क्या थी? फिर जनाब उमर का कबूल इस्लाम। अल्लाह बताता हूँ कितनी अज़ियतें, आका तो आका रहे, जो कलमा पढ़ता उसको भी तकलीफ देते। बताइए हजरत बिलाल का क्या कसूर था? क्या वो अपना काम वो पूरा नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं। क्या उन्होंने अल्लाह न करे कोई गलती की? नहीं, सिर्फ एक जुर्म था, अहद अहद के नारे लगाते, कहते थे ये तुम्हारे पुत्र कुछ नहीं, वहदहु ला शरीक। मैंने कलमा पढ़ा। जालिम क्या करते? तपती रेत पे लिटा के गर्म पत्थर रखते, चीखें सुनते। आका करीम जब उनकी आवाज सुनते, उधर से गुजरते, दिल में तकलीफ होती। आप अंदाजा लगाइए कितनी तकलीफें। आज अगर हम सगे भाई के घर जाए ना और हमें देख के, भाई नहीं, भाई का छोटा बच्चा दरवाजा बंद कर लेना, हम गुस्से से, मुझे देख के दरवाजा, हम वापस बोलना खत्म। भाई कहा सुनिए, आका करीम अल्लाह का पैगाम लेके जाते ना, तो वो जालिम आका को देख के दरवाजे बंद कर लेते, बात ही नहीं सुनते। कितनी अज़ियत है, और मैं कितना अज़ियत बयान करूं, क्या मतलब बताऊं। जो मुंह में आता बोल देते, कोई मौका न जाने देते। एक मर्तबा का करीम ने, अच्छा ये नहीं ज्यादा सुन रहे, चले बाहर जाके करता। आका करीम वो ताइफ की तरफ निकल गए। ताइफ के लोगों को जाके कहा, पैगाम लेके आया हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता कि मैं सरदार फुला नहीं, अल्लाह की बात करता हूँ ताकि तुम बच जाओ, जहन्नुम की आग से बच जाओ। वो कोई सख्त दिल लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा ये कोई नया पैगाम आ गया है। जवानों को, बाज नौजवान लड़कों को पीछे लगाया, जोड़ी में कहा पत्थर इकट्ठे करो। पत्थर इकट्ठे किए, कहा ये जो जवान आया है ना मुसाफिर, पत्थर। उन जालिमों ने आका करीम को पत्थर, वो किताबों में आता है जिसमें मुबारक से खून निकल कर जूतों में जम जाता। आका करीम निढाल होके बैठ गए। वो पीछे से आए और कमर पे हाथ डाल के खड़ा किया, कहा कि नबी बनना इतना आसान है, खड़े हो जाए। फिर पत्थर मारे। कितना जुल्म है, कितनी आपके साथ ज्यादती हो रही, क्या आपको बताऊं। आका करीम वो घर में तशरीफ फरमा होते, तहज्जुद के लिए उठा करते, बुखार की कैफियत हो गई, तबीयत नासाज हो गई, चंद दिन तहज्जुद को ना उठे। अबू लहब की बीवी वो ऊपर से जाती, साथ घर था ना, देखा करती, नहीं उठे, आज भी नहीं उठे। मौका मिल गया बजाय तीमारदारी करने के,
बजाय खैर खैरियत पूछने के शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों, मोहम्मद तहज्जुद को नहीं उठे, मोहम्मद को मोहम्मद का रब छोड़ गया। कितना बड़ा ये ताना है, और जिसके लिए अल्लाह ने सारी झूठ मखलूक को छोड़ा, उन्हें ये ताना देना कि आपको आपका रब छोड़ गया। आका सब्र कर गए, बर्दाश्त करते, उसकी रजा के लिए मौला तू राजी हो जा, तेरा पैगाम पहुंचा, मैंने तुझे राजी कर दिया। आगे आका करीम के छोटे नन्हे साहबजादे फौत हो गया। आपको पता ना मौजूद, बस मैं इशारे करके जा रहा, वो बचपन में फौत हो गई। जब फौत हो गई ना, आखिरी शहजादे भी फौत हो गए। जालिमों ने फिर बजाय अफसोस करने के, और दुश्मन का भी कोई फौतगी हो तो लोग नारे नहीं लगाते, खामोश हो जाते, कोई नहीं फौतगी हुई। लेकिन वो जालिम इतने सख्त थे, उन्होंने कहा ओ मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, मोहम्मद का नाम भी खत्म हो जाना है। बच्चे तो फौत हो गए, वो चंद दिनों की बात है, मोहम्मद का नाम ही नहीं रहना। अल्लाह की रहमत को जोश आया, फरमाया मेरे महबूब के बारे में ये कहते हो, सुनो फिर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। महबूब, इन्होंने तुम्हें कहा है तुम्हारी नस्ल खत्म होगी, दुनिया देखेगी, इनकी नस्ल खत्म होगी, कयामत तक मैं तेरा नाम बाकी रखूंगा। सुभान अल्लाह। आज देखिए, वो सिर्फ मक्के में था, आज दुनिया के कोने कोने में क्या आवाज बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहाँ अल्लाह के रसूल का भी नाम लिया सुभान अल्लाह। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सब्र, वो बर्दाश्त, वो जुल्म, इतना उन्होंने जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, आप अंदाजा लगाइए। इस्लाम की पहली खातून जो शहीद हजरत सुमैया, खातून औरत जात है, भाई मारना है ना किसी तरीके से, नहीं मुझे कहने लगा आज तमाशा होगा। क्या तमाशा होगा? इन्होंने कलमा पढ़ लिया, गुलाम थे ना, 2 ऊंट मंगा, एक ऊंट का मुंह इधर, दूसरे का बराबर, उनको पुश्ते इकट्ठी खड़ा कर दिया। हजरत सुमैया मुसलमान औरत, एक टांग इस ऊंट को बांधी गई, दूसरी टांग इस ऊंट को बांधी गई। कहा अभी भी मौका है, कलमा छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो। औरत कहने लगी नहीं, जान जाती है चली जाए, मोहम्मद का कलमा नहीं। सुभान अल्लाह। लोग सारे जमा हैं, कितना तमाशा हो रहा है। नेज़े की अनियां, ऊंट नहीं पाते हैं, ऊंटों को पता है कि हमारे ऊपर इंसान, नेज़े की अनियां, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, तो नेज़े की नौक ऊंटों को चुभोई जाती है, तकलीफ की वजह से ऊंट आगे को जाता है, ये इधर को, ये इधर को, ऊपर बंधी हुई हजरत सुमैया के 2 टुकड़े हो जाते। कितनी अज़ियत है, कितनी तकलीफ है, सारी जिंदगी बर्दाश्त है। सहाबा क्या है, हिजरत करने की मजबूरी हो गई, अपना घर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, माल और जायदाद सारा कुछ छोड़ के, पास कुछ भी नहीं, छुप छुप के हिजरत कर रहे। आका करीम को कितनी अज़ीज़ है, कितनी तकलीफ है। वो काफिर खड़े हो गए और खड़े होके कहा, एक एक आदमी लो, वो कबीले का तलवारें लेके एक एक आदमी आए और आके मोहम्मद के घर के बाहर खड़ा हो जाए। जब मोहम्मद सुबह निकले ना, तो इकट्ठे कबीले के लोग हमला करें
ताकि अगर बात भी आए ना सारे कबीलों पे आए कि मामला खत्म हो जाएगा। वो कितनी अपनी तरफ से अज़ियत देते। बहरहाल मैं मौजू समेटता हूँ, इतनी तकलीफ, इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, आका करीम का इतना बर्दाश्त, अल्लाह की रहमत को जोश आया। फरमाया महबूब तूने मुझे राजी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए सब्र किया, सब्र की इंतहा कर दी। आज की रात मैं अपने इनाम की भी इंतहा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने जिंदगी में ये मुश्किल बर्दाश्त की किसकी खातिर? मुझे राजी करने की खातिर। महबूब तूने मुझे राजी करने की खातिर कमाल कर दिया, मुझे राजी करके छोड़ा। आज की रात मैं भी तुझे राजी कर। सुभान अल्लाह। एक है अल्लाह की रजा, अल्लाह को राजी करना, और एक है रजा से ऊपर। एक नेमत अल्लाह की रजा से भी ऊपर अल्लाह को राजी करना, वो है, याद रखिए। बस गुफ्तगू खत्म हो गई, बड़ा कीमती पैगाम। एक है अल्लाह को राजी करने से भी ऊपर, वो नेमत कायनात की बड़ी नेमत, वो नेमत कायनात की बड़ी नेमत किसी और को नहीं मिली इस दुनिया में। इस कायनात में वो नेमत मुझे नहीं मिली, आपको नहीं मिली, अल्लाह के वली को नहीं मिली, गौस कुतुब अब्दाल को नहीं मिली, जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मिली, किसी को नेमत नहीं मिली। बल्कि अल्लाह के उलुल अज़्म रसूल जनाबे मूसा दुआ करते रहे, मौला नेमत दे दे, नेमत दे दे, नेमत दे दे। जवाब आया नेमत नहीं मिलेगी, इस दुनिया में नहीं मिलेगी, बाद में देखा जाएगा। वो नेमत अल्लाह को राजी करने से भी ऊपर, अल्लाह को खुश करने से भी ऊपर। महबूब सारी जिंदगी तूने सब्र किया, बर्दाश्त की, मेरी खातिर तकलीफें उठाई, मैं तुझ पे राजी हो गया। आज मैं अपने अर्श पे बुला के बड़ी नेमत ये देता हूँ, तुझ पे राजी भी होता हूँ, और बगैर पर्दे के अपना दीदार। सुभान अल्लाह। अब सुनिए दो बातें, वो मेरी पहली बात, सफर लंबा किया, बैतुल्लाह को देखा, सारी थकन निकल गई। बैतुल्लाह को देखा जिसने, उसकी थकन उतर गई, और जिसने बैतुल्लाह के रब को देखा होगा उनकी खुशी का आलम क्या। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। तो ये मेराज की रात, ये असल में ये दुखों के मनावे की रात है, इनामात देने की रात है। आका करीम ने जो जिंदगी पर सब्र किया, उस सब्र का फल देने की रात है। वो क्या रात है, हर एक ने अपने मिजाज में कहा। अभी ये शेर पढ़ रहे थे, इस रात दे तारे दस देने, अज अर्श सजाया जाना। सुभान अल्लाह। इस रात दे तारे दस देने, अज अर्श सजाया जाना है। गारा विच रोमन वाले नूं मेहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विच रोमन वाले नूं मेहमान बनाया जाना है। तुरे मक्के तू अज दो राही। सुभान अल्लाह। क्या कि तुरे मक्के तो अज दो राही, जिब्रील ते रब दा एक माही। सुभान अल्लाह। तुरे मक्के तो अज दो राही, जिब्रील ते रब दा एक माही। एक सिदरा ते रह जाना है, एक कोल बुलाया जाना। सुभान अल्लाह। या का करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अज़मत है। कहते हैं ये रात ऐसी है, दो ज़ातां ने रल मिल बहना है। सुभान अल्लाह। कुछ मननी ते कुछ मनवानी है। और राज की बातें होती है ना,
जब इकट्ठे होते ना कोई मान ली जी मौला और कुछ अर्ज कर दे। शायर ने कितना खूबसूरत कहा इस रात कि कुछ मनने ते कुछ मनमानी मनने ले मनवा भी ले। सुभान अल्लाह। इस मनन मनमान का नतीजा की निकला उम्मत मुस्तफ़ा मुबारक हो। शायर कहता है मेराज की रात का राज बताने लगा हूँ, कुछ मनने ते कुछ मनमानी है। मनन मनमान तो बाद की होना है, बूहे जनता वाले खुलने, अल्लाह अल्लाह। बूहे जनता वाले खुलने में तो जख्म बुझाया जाना। सुभान अल्लाह। इस उम्मत की खातिर जन्नत फैसले आका करीम ने हरीम नाज में पोके ये अर्ज की किताबों में लिखा है। हाथों को जोड़ के कहा मौला तेरा शुक्र तूने दीदार अता किया, ऐसी नेमत अता की जो इससे पहले किसी को न मिली। मौला तेरा नबी अर्ज करता है मेरी एक अर्ज कबूल करे। फरमा महबूब फरमाइए क्या कहते हो? अर्ज की रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। बूहे जनता वाले खुलने ने दो जख्म बुझाया जाना। अल्लाह करीम आज की सारी महफिल पाक को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जिन इंतजामिया ने